Like progress. Okay, good evening, student. ସମସ୍ତଙ୍କ voice clear ଅଛି? Everything is clear? Everything is clear? Okay, thank you. Okay, ঠিক আছে। তো ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ତାପରେ ଆଜି ମୁଁ ତାପରେ କ୍ଲାସକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି। ଆଜିର ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତମକୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲି ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିକୁ ନେଇକି। ତ ପ୍ରଥମେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିର। ଆଜି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିର ଆଜି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ତାପରେ କ୍ଲାସକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅଲରେଡି ଯୋଉମାନେ ମେନ୍ ପ୍ରି କ୍ଲିୟର କରିଛୁ, ତୁମମାନଙ୍କର ମେନ୍ ର ଯୋଉ ମାନେ ଏକ୍ସାମ ଡେଟ୍ ଅଲରେଡି ଆସିଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ତୁମର ମାନେ କେବେ ହବ ନା ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଏପ୍ରିଲ। ଏପ୍ରିଲ ମନ୍ଥର ଏପ୍ରିଲ ମନ୍ଥର ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ମାନେ 7 ତାରିଖ ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ହବ। ତ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ମେନ୍ ର କ୍ଲାସ ର ଯୋଉ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛେ, ଯୋଉମାନେ ରାପିଡ ଫାୟାର ରେ ଜଏନ୍ କରିଛୁ ବା ଯୋଉମାନେ 25 ପାଇଁ ପଢିଛ, ଏ ଦିଟାକୁ ମୁଁ କମ୍ବାଇନ କରି ନେଉଛି। କାହିଁକି କମ୍ବାଇନ କରି ନେଉଛି? ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ଅଛି 2024 ତୁମର ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକରେ, ତ ତା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। 25 ପିଲା ଯେ ସେଇଥିରେ ତୁମେ ପଳେଇ ଯାଅ, ତୁମକୁ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା 25 ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହବ, ମାନେ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ହବ ତୁମେ ବି ଜାଣିପାରିବନି ଯେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏକ୍ସାମ ହିଁ ସରିଗଲା। ତ ମନେ ରଖ, ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ଅପ୍ ଟୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟୋଟାଲି ମେନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ପଢିବା। ମାନେ କେମିତି ପଢିବା? ଥିଓରି ପର ଡେ ଆଉ ପର ଡେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ନବା? ଯେମିତି ଥିଓରି ପଢିବା, ଥିଓରିକୁ ବେସ୍ କରି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନବା। ଆ ଦ୍ୱାରା ବେନିଫିଟ୍ କଣ ହବ? ଯୋଉମାନେ ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଛ, ତୁମର ଥିଓରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ସହିତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଯୋଉମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମେନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଛୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଯେ ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ତୁମ ପାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଟାଇମ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ମୁଁ ରଖିଛି। ରାତି 10ଟା 30 ଟାଇମ ସିଡ୍ୟୁଲ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ବ୍ୟାଚରେ ତୁମେ ଅଲଗା ପିଲା ଚାହିଁଲେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ, ଯୋଉମାନେ ଆଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟାଚରେ କଣ ହବ? ସେ ବ୍ୟାଚରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3ଟି ଲେଖା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି, ଯେତିକି ମୁଁ ପଢେଇବି ତାରି ଉପରୁ। 3ଟି ଲେଖା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ GS2 ରୁ, ଗୋଟେ GS3 ରୁ, ଗୋଟେ GS4, କିମ୍ବା ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କରି ଦେବି। 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି ପର ଡେ। ପର ଡେ 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତୁମର। 25 ପିଲା ବି କରିପାରିବ, ମେନ୍ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ପଢୁଛ କରିପାରିବ। ଆର ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିସ୍କସନଟା ଆମେ ରାତି 10ଟା 30ରେ କରିବା। ଏଟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏପ୍ରିଲ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବା। ତା ଅର୍ଥ ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଯଦି ଆମେ ଓଭରାଲି ଡେ ଦେଖୁଛେ, 50 ଦିନ, 50 × 30 150 ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ବସିବ, ସେତେବେଳକୁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଫିଲ୍ ହବ, ନା ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମକୁ 2ଟା ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଦେବି। ଗୋଟେ 7ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍, ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା 30ରେ ଗୋଟେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍। ଏ ଯୋଉ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଦିଆଯିବ, ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଦିଆଯିବ, ଯୋଉଟା କି 25 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 100% ବେନିଫିଟ୍। ରାପିଡ ଯୋଉମାନେ ରାପିଡ ଫାଇର ମେନ୍ ରେ ଜଏନ୍ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବେନିଫିଟ୍ ହବ। ତା ଅର୍ଥ ଥିଓରିକୁ ଥିଓରି ହେଇଗଲା, ମେନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ବି ହେଇଗଲା। ଆଉ ମନେ ରଖ ପିଲେ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରି କ୍ଲିୟର କରି ମେନ୍ ଦବ, ଥିଓରି ବିନା ଆଗକୁ କେବେ ବି ଯାଇ ହବନି। ଥିଓରିକୁ ମଜବୁତ କର। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ଯଦି ତମ ଥିଓରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ, ମେନ୍ ପରେ ପରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ଆସିବ, ସେଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଆଉ 25 ପିଲାଙ୍କୁ କହୁଛି, ତୁମେ ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ ଏବେଠୁ ପଢିଯାଅ। ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ ଏବେଠୁ ପଢିଯାଅ। ଯଦି ପଢିଯିବ, ତମ ପାଖରେ ଯୋଉ 200 ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସେ ପୋଷ୍ଟଟା ତମ ପାଇଁ ଚୁଟକି ହେଇଯିବ, ସହଜେ ତମକୁ ରିସିଭ କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝା ପଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ସିଡ୍ୟୁଲ ଆମର ଚାଲିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି, ଯୋଉ ହୋମ ସାଇନ୍ସ ଅପସନାଲ କ୍ଲାସର ଟାଇମିଂଟା ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭୋର 5ଟାରୁ ଏଥର କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭୋର 5ଟାରୁ ଅପ୍ ଟୁ ଏପ୍ରିଲ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେହେତୁ ଡେ ଟାଇମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସିଡ୍ୟୁଲ ହେଇପାରୁନି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ 5ଟା ହେବ। ତ ସେ ଟାଇମରେ ସମସ୍ତେ ଆଭେଲେବୁଲ ଥିବ। ଯଦି ବା କୋଉ ପିଲା ଆଭେଲେବୁଲ ନଥିବ, ତୁମେ ଆଉ ମନେ ରଖ, ହୋମ ସାଇନ୍ସର କ୍ଲାସ ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରୁ 12 ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ।
जो बोथ 25 पिलांगर रैपिड फायर जो मैंने प्रिपरेशन पर्टिकुलर होम साइंस हो से पूरा क्लियर। आज डे वन रे स्टार्ट करिबा डे वन स्टार्ट करिबा डे वन रे हमें कौन रखिले ना थ्योरी पढ़िबा थ्योरी को नेकिरी लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी को नेकिरी लॉन्ग क्वेश्चन। चलो आग लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन कर दो जोटा कि काली मु तुम देइथिले आज मॉर्निंग रे। ओके चलो जदि कहार बुझीबार किसी प्रोब्लेम होथो तो डायरेक्ट कॉल करि परिबो किसी प्रोब्लेम नहीं। जो मैंने 25 पढ़ुच बाई चान्स तुम जानी पारुन एक्चुअली मत केमती जीवार अच्छी। अच्छा क्वेश्चन टाको समस्त लिखिच ताले मु देखो ए जिनसटा मु रिसेंटली पढ़ाऊँ माने 2-3 दिन है पढ़ाऊँ ताकू नेकर क्वेश्चन देथिली ए क्वेश्चनटा गोटे करेंट इश्यू गोटे करेंट इश्यू जो तुम थियोरी को लेखा को साइमल्टेनियसली न नब तुम प्रोब्लेम रे फेस करियो। तो सेति मन रख जेतेबेले जो लॉन्ग क्वेश्चन दोछि काइंडली से लॉन्ग क्वेश्चन टा कर ए लॉन्ग क्वेश्चन परे परे मु तुम सहित डिस्कशन करिवि कोफ 16 लास्ट कारण भेरी इंपोर्टेंट अपकमिंग पे प्लस ता वर्ष। अच्छा ए क्वेश्चन रो मीनिंग समझते बुझी पाए जो क्वेश्चन रे देथिले कारण ए क्वेश्चन रे दीटा कांसेप्ट को मिसै छी क्वेश्चन रे दीटा कांसेप्ट को मिसै जाय छी गोटे किस हमर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम जो रखी छे सस्टेनेबल टू डेवलपमेंट रखी छे ता सहित बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को हमें ऐड कर छे। क्वेश्चन टे हमको या पूछे discuss how India can, okay, mainstream biodiversity conservation in all relevant sector of development of achieve long-term sustainability. तार्थ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी अर्थ कौन दीर्घ दिन पर्यंत आम पाखे गच्छित था जिनस को सस्टेन कर रखी दीर्घ दिन पर्यंत आम जमी व्यवहार कर से कौन आम पाखे जो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन सब रोचे आम कौन करवा दरकार जहाद्वारा आम लॉन्ग टर्म पर्यंत को रखिपर तार डैमेज को हो ताको आम प्रोटेक्ट दे पारिबा से जिनस आम मेंटेन करि परिबा जोटा कि मु तुमको देखो ए सब क्वेश्चन जे तुम कह सर आम एमती पढ़े नथिले ना एमती क्वेश्चन तुम क्वेश्चन थ्रू रे जानि परिबो जे मते कोन करियर अछि किंतु ओवरऑल गोटे जिंस मु तुमको कहिछि कोन कहिछि ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होछि जे आमे 2030 मसिया पर्यंत टार्गेट रखिछे आम पाखे केतेटा गोल अछि ना 17टा गोल अछि से गोल ऊपर आमे काम करिबा जोटा कि आमे रखिछे। ओके तो ता सहित आमको से बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को मर्ज करूँ जे हम क्या द्वारा हम कौन बेनिफिट पाई परिबा। चलो फास्ट आम किसी इंट्रोडक्शन रखा हाँ मुझे गोटे जिन तुमको कहना चाहिए स्टूडेंट जो एग्जाम तुम लिखुच सब डायग्राम करने ट्राए कर जेहेतु मुझे तुमको गोटे मॉड्यूलर आंसर दूसरी मो हैंड रईटिंग डायग्राम मुझे बनई पारि मुझे क्लास रे कहीदेवी ये क्वेश्चन को लेकर कौ भाई गोटे डायग्राम हो पार। ओके आ सब बेले जमी मुझे बोल्ड अक्षर करुच्ची तुम लक्ष्य करूँ किसी लेखा को बोल्ड अक्षर करुच्ची आर मीनिंग हूँ तुम से जिनस सब अंडरलाइनिंग कर से सब जिनस अंडरलाइनिंग तार अर्थ आम जिते लंग क्वेश्चन लिखा मन रख पिले बोथ जो मैंने एवर्ष एग्जाम देव प्लस अपकमिंग इयर जो मैंने प्रिपेयर हो तो तुम दुईट जिनस फोकस कर गोटे हूँ अंडरलाइनिंग गोटे हूँ माने डायग्राम गोटे फ्लो चार्ट आम जहाँ कही ए दुईटा जिनस गोटे भल रिजल्ट तुमको देता। अच्छा मु तुमको गोटे जिनस ये कहना चाहूँगी किसी किसी पिलांकर मु खाता देखुली नो डाउट ठीक अच्छे किंतु मु तुमको पचारि गोटे क्वेश्चन किसी पिला तो पूर्व वर्ष एग्जाम देइथिल आउ किसी पिला ए वर्ष नुआ दब किंबा किसी पिला आगु को दब केबे मेन रो खाता देखिछ केबे मेन रो खाता देखिछ केबे कि देखिछ मेन रो रियल खाता मु तुमको दिन देखैबी। ओके मे भी काली आड़ गोटे वीडियो बनैबी से तुमको देखैबी जे को टाइप रो मेन खाता था साधारणतः मन रख दशम बोर्ड परीक्षा जो टाइप रो थाए दशम बोर्ड परीक्षा जो टाइप रो खाता मेन पाई से खाता तो तुमको प्रथकर गोटे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन 1 नंबर अच्छी 1 नंबर क्वेश्चन लिखा अच्छी 1 नंबर क्वेश्चन लिखा अच्छी ताकू बेस करी 3टी पेज थी केतरा पेज थी 3टी पेज तुमको ऑलरेडी पेज दे तुमको 3टी पेज भितर लिखा पड़ो तो तापर फिर 2 नंबर क्वेश्चन आसो लिखाई 3टी पेज दे तार्थ तुम माइंड सेटअप कर आम जहाँ भी लिखा जमी भी डायग्राम करवा 3टी पेज भर हवा दरकार तुम्हें तुम्हें भाव मो स्टार्टिंग अधिक डायग्राम करदेवी अधिक लिखिदेवी लास्ट आड़ को सेमती ना तो तुम दिमाग तुम माइंड टा सब से दरकार एमती किसी लिखी आ मन रख
मार्जिन ता भीतर बहुत एते सारा जगह भी न था साइड रे गोटे मार्जिन था एपटे साइड रे गोटे मार्जिन था तले गोटे मार्जिन था तो आर भीतर लिखिया पड़े रोलिंग पेपर था कौन था रोलिंग पेपर था ओके पूरा क्लियर हलो मु तुमको गोटे दिन देखिए देबी जे को टाइप रो रियल टाइप रो खाना भाई एबे जीवा हमें कोठी ना हमर क्वेश्चन ऊपर कौन से क्वेश्चन हम लिखुछे जे इंट्रोडक्शन दबा जे एक्चुअली हम काहे की चाहूछे ଯେ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧି ପରିବେଶଗତ ବିବିଧତା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡାଇଭରସିଟି ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଯୋଉଟାକି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ପାଇଁ ଭାରତ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡାଇଭରସିଟି ଅଛି ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ इंडिया रो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पे बहुत इंपोर्टेंट होची तो ताकू प्रोटेक्ट करबा हमर दायित्व होची तो एई भली गोटे इंट्रोडक्शन रखिबो जोटा कि तुमे माने एग्जामिनर को देखै दछु मते एई विषय हम लेखे को चाहू तापर आसे बॉडी पार्ट कारण हम तीनोटी पार्ट रखिबा गोटे इंट्रोडक्शन गोटे बॉडी आ गोटे होची कंक्लूजन तीनोटी जिंस रखिबा बॉडी पार्ट रे मु सेई जिंस को माने फोकस करिवि जो जिंस ऊपर मते फोकस करिवार अछि जे एई जिंस प्रति मते टिके एम्फासिस दबार अछि जहा द्वारा कोन हे परिबु हमरो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रे बा लॉन्ग टर्म हम यूज करि परिबा काहाकू ना हम पाखे थिया बायोडायवर्सिटी जेमति एग्रीकल्चर सेक्टर ऊपर फोकस करिवि जेमति कि फॉरेस्ट सेक्टर ऊपर रहिला तापर आसिला कि से ना फिशरी सेक्टर रहिला जेमति तुम मानकर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट रहिला ता सहित एनर्जी सेक्टर रहिला ता सहित आसिला कोन टूरिज्म सेक्टर ए जो सब सेक्टर अछि ता ऊपर हमको कोन करियर अछि ना माने माने फोकस करियर अछि तो ताकू नै कि गोटे छोटो डायग्राम तुम एमती लिखि परिबो सपोज गोटे सर्कल भलिया कल एमती किसी मझी लिखल गोल हमरो मुख्यतः को सेक्टर पर गोल रहा दरकार मु टिके एमती कर देली तार तो कौन सी गोटे लंकोश गोटे भी डायग्राम गोटे पॉजिटिव साइन दिए प्रत्येक टीचर मैंने प्रत्येक टीचर का थॉट थाए पिला केते दूर गोटे जिनिस को शॉर्ट रे फ्लो चार्ट करि पारुछि ओके तो सेटा तुम फास्ट रिप्रेजेंट करो तो आमे तापर जिवा कोठी की ना पर्टिकुलर सेक्टर को जिवा जे एग्रीकल्चर सेक्टर रे हमको कोन करिवार अछि सो दैट हम एग्रीकल्चर जो जिनिसटा अछि वो लॉन्ग टर्म पर्यंत नहीं परिबी माइंड रे क्वेश्चन आस्तो सर एग्रीकल्चर हमको कोन करिवार अछि आजिकल आम बहुत सारा टेक्नोलोजी यूज करुचे बहुत सारा माने पेस्टिसाइड यूज करुचे किंतु आम एग्रीकल्चर एमती कौन टा अच्छी जोटा आमको एम्फासिस देवा दरकार फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम पर से होची इंडिजिनियस क्रॉप से होची किस इंडिजिनियस क्रॉप इंडिजिनियस क्रॉप माने तुम जानिथिबो स्वदेशी प्रणाली रे आमे जो सब चाष करथो तुम आजिकल हाइब्रिड जिनस यूज करुछ हाइब्रिड गछ लगाउछ जो जिनस होची ताकू कहा जाउनी आम जो इंडिजिनियस क्रॉप अच्छी ता ऊपर फोकस करिया अछि ताकू जे आमे हळदी चाष मांडिया चाष आम जो जतक सब माने आम पूरा माने ट्रेडिशनल मेथड जो यूज करी एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो यूज करी जो प्रोडक्शन करूचे से जिनस ऊपर हम फोकस करिया अछि काहे कि ना सी भी हमर गोटे बायोडायवर्सिटी अंडर रे आसुछि ओके एबे देखिया कोन ना एग्रीकल्चर सेक्टर रे हम कोन आसिला ना हां कृषि जैव विविधता को प्रोत्साहित करवा तार्थ प्रमोट आग्रो बायोडायवर्सिटी तो आग्रो बायोडायवर्सिटी को प्रमोट करवा जहाँ द्वारा जो इंडिजिनियस क्रॉप अच्छी तार जमी आम प्रोटेक्ट सहित डेवलपमेंट कर एग्जांपल होया कौन था बंद रखिली जे एग्जांपल होची आम मानक रख दिया जाइए गोटे राइट बा एक्ट दिया 2001 एक्ट जोटा कि प्लांट भेराइटी प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट भेराइटी ऑफ फार्मर्स राइट एटा दिया ना तो ये जो फार्मर राइट आम यूज करिपरिबा जहाँ को यूज करके आम इंडिजिनियस क्रॉप को अधिक दिन पर्यंत माने लॉन्ग टर्म पर्यंत आज यूज करिपरिबा ये हूँ गोटे एग्जांपल हो पारिबो जोटा कि हमर पॉइंट आउच तापर आसिला कोन स्थायी कृषि पद्धति सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जहार यूजेस किस ना प्रधानमंत्री जो माने गवर्नमेंट जो स्कीम आसी पीके वीवाई योजना ये सब योजना एग्जांपल नहीं पार ये जिनस को आम व्यवहार करवा आपको आम एम्फासिस दबा जहाँ द्वारा आम कौन एग्रीकल्चर सेक्टर को माने माने जो इंडिजिनियस क्रॉप जो अच्छी आपको आम लॉन्ग टर्म पर्यंत नहीं पारी आसला फॉरेस्ट सेक्टर मत को बर्तमान सबुठ चैलेंजिंग आम कौन है
सस्टेनेबल डेवलपमेंट केस रे सबुठ मोस्ट चैलेंजिंग सेक्टर बर्तमान आम किए से फॉरेस्ट सेक्टर से किसे फॉरेस्ट सेक्टर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्थायी वन परिचालन तार तो परिवेशगत परिवेश भित्तिक पद्धति कार्य करने सहित संप्रदाय भित्तिक जंगल परिचालन प्रोत्साहित करवा तार अर्थ हूँ कौन ना माने कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट ऊपर आम ध्यान देवा दरकार लोकल कम्युनिटी को फॉरेस्ट सेक्टर ऊपर ध्यान देवा दरकार जो लोकल कम्युनिटी को अवेयरनेस क्रिएट करिया दरकार जहाँ द्वारा कौन हो पारिबो जो फॉरेस्ट सेक्टर टाको आम लॉन्ग टर्म पर्यंत रखिपारिया जदि आम फॉरेस्ट सेक्टर ऊपर से काम न करिबा आगामी 20 रु 25 वर्ष पर जंगल भी ही तुम पाइबनी कहीं ना वर्तमान टाइम रे लोक माने भल पाती जंगल को किंतु काटती आग जंगल लोक माने भल पाती नेचर को आग नेचर को ही से नष्ट करते तो से आमको सस्टेनेबिलिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट उपर ध्यान देवा दरकार ओके ओके अच्छा किसी एग्जांपल हम नहीं परिबा ओके नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया तो ग्रीन इंडिया जो हमरो मिशन रखा जाइछि जहां अंडर हम कोन करछे फॉरेस्ट कल्टीवेशन बा हम जो फॉरेस्ट को पुनरुद्धार करिया पई हमें काम करछे हाँ रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट तार अर्थ तो कौन ना जी अब अबक्षेत्रित जंगल पुनरुद्धार जो जंगल सब नष्ट हो जाइए तो से जंगल को पुनरुद्धार काम करार अच्छे जमती कि इंडिया बर्तमान मुख्यतः गोल अच्छी 26 मिलियन हेक्टर जोटा कि जमी फॉरेस्ट को आउ थे पुनरुद्धार केबे पर्यंत ना 2030 पर्यंत ये सब जिनस आमको ध्यान देवार अच्छी जहाद्वारा फॉरेस्ट सेक्टर जो बायोडाइवर्सिटी आम जो अच्छी लंग टर्म पर्यंत आम यूज कर पूरा क्लीयर हल मोर कहबार कथा कौन लिखा जाए इंपोर्टाट नहीं क्वेश्चन कौन पचारुची केमती आम रिप्रेजेंट करुचे दैट इज द इंपोर्टाट से दुटा जिन फोकस कर क्वेश्चन कौन चाहूँगी से हिसाब से आम डेलीवर द्वारा अच्छे क्वेश्चन जहाँ चाहूब आम उल्टा दौथवा रिजल्ट आसो क्वेश्चन जहाँ चाहूँगी आम से दबा पचे अल्प देले भी भल स्कोर हम हाँ कम्युनिटी बेस्ड चल तापर आसला आउ को क्षेत्र आसला ना फिशरी सेक्टर तो तुम्हें सेमती कहीपर जे फिशरी सेक्टर आम कौन कर दरकार जमती कि मत्स्य स्थायी माछ धरा धरिबा अभ्यास माछ धरिबार जो कोटा जो पर्टिकुलर मत्स्यजीवी स्थायी व्यवस्था किसी करवा तुम पर्टिकुलर मत्स्यजीवी मान माने प्रोब्लेम कौन हो ना तार एरिया को लेकिन तार बाउंड्री को नहीं कौ एरिया पर्यटन फोकस कर दरकार ये पूरा ध्यान देवा दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बान डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बान डेवलपमेंट भित्तिभूमि एवं सहरांचल विकास जोटा कि वर्तमान आम बहुत इंपोर्टाट है कौन ना अर्बान फॉरेस्ट सेक्टर अर्बान एरिया रे आ जंगल नहीं देखो कटक देख भुवनेश्वर देख अत्यधिक टेम्परेचर कहीं टेम्परेचर बिकज ऑफ नो फॉरेस्ट फॉरेस्ट दिन को दिन कटि कटि जाऊँ टाउन मानक तो तुम खरा आउ तो मस पर जापर तार तो आमको क्या ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर आमको माने फोकस कर जमीक कि अर्बान फॉरेस्ट सब फोकस कर जमी एग्जांपल हूँ आम नहीं पार बायोडाइवर्सिटी पार्क इन दिल्ली तो दिल्ली में बर्तमान कौन कराई विभिन्न बायोडाइवर्सिटी पार्क मान तैयारी तो आमको फोकस कर ओके तो एमती आउटा आसला वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाँ जैसे देख बर्तमान कौन हो ना रोड आउ रेलवे देखो बहुत सारा वाइल्ड लाइफ एनिमल डेथ हो देखि ट्रेन रे हाथी माड़ होकर डेथ हो ट्रेन रे अमुक जानवर जीवजंतु बाड़ी होकर मरचंती तुम देखो रास्तार जो गाड़ी जाऊँगी बाड़ी तो आमको कुछ इनिशिएटिव स्टेप ना दरकार जमती कि तुम देखो NH 74 जोटा कि पिंच टाइगर रिजर्व जो अच्छी गवर्नमेंट कौन स्टेप नहीं ना तुम ओभर ब्रिज अंडर पैसेज दीटा जो बनयंतु आसले तलबार देखे जी आउटा आसला किस ओभर पैसेज तो यही सब जो स्टेप नि तो तुम लिख पार इलेक्ट्रिक शॉक हो इलेक्ट्रिक शॉक ए यूज करनी मैंने किसी एमती किसी जिन लिख जमी कॉरिडोर जमी बाउंड्री या ओके ये सब जिन ध्यान देवा दरकार सो दैट कौन हो पार आम जो बायोडाइवर्सिटी जो अच्छी बहुत दिन पर्यटन बंची रखी पार तो आम पाखे क्वेश्चन हूँ दी प्रकार केमती क्वेश्चन अच्छी गोटे साइड रे बायोडाइवर्सिटी गोटे साइड रे सस्टेनेबिलिटी माने आम बायोडाइवर्सिटी कौन करवा दरकार जमी
लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी सहित मेंटेन हो पार बहुत दिन पर्यंत हम रखिपर। तापर आसला एनर्जी स्टोरेज आस जोटा कि आम जो एनर्जी रोज ध्यान देवा दरकार। एमती दी तीन पॉइंट को लिखियो। तापर आसे कंक्लूजन लिखिला। कंक्लूजन रे पर्टिकुलर हमर ए जो माने बायोडायवर्सिटी अंडर को फोकस करिया पई दुईटा सस्टेनेबिलिटी गोल रखा है। गोटे हूँ सस्टेनेबल गोल हूँ 14, गोटे हूँ गोल हूँ 15। ताप्रति हमको फोकस करिया अछि। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 कौन अछि पिले? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 कौन लिखा है कि कहबो? लाइफ ऑन लैंड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 कौन लिखा है? 14 लाइफ बिलो वाटर। थैंक यू। बिलो वाटर। आउ 15 कौन कहला कि? 15 कहला कौन? लाइफ ऑन लैंड। क्वेश्चन टी समस्त बुझी पाइल जे एक्चुअली ए प्रोसेस दे गले आई होप तुम माने बेनिफिट पाइबो। काना देखो गोटे पिला सक्सेस पाइबा पाइ हेले ता पाटरू दरकार जे मते एई भली नियंतु ताले मु एई पाइलो। मु तुमको प्रोसेस कहबी किंतु मते तुमको हाथ धरि नवा पड़ो। प्रिलिमिनरी ए जिंस प्रॉब्लम होएनी। प्रिलिमिनरी कोन तुम मेन रे तुम गोटे एफर्ट सब टिके हे गलो माने स्ट्रेट फसी जो। ओके पूरा क्लियर? पूरा ये प्रोसेस जीवा। जो पाठ आम थ्योरी पढ़ा ताकू नहीं आम लंग क्वेश्चन एवरीडे करवा। रात 10 जेहेतु आज मुझे बर्तमान यहाँ 7टा बेले क्लास करी जेहेतु मुझे बर्तमान इनफर्मेशन तुमको देवी। चल अच्छा आज जो क्लास अच्छी कोप 16 जीवा से। आज जो क्लास अच्छी कोप 16 जोटा कि एवर्ष गोटे इंपोर्टाट पॉइंट। डायग्राम बेसी कर तीन चार डायग्राम कर 3टा पेज दे 3टा पेज के डायग्राम कर से हिसाब से कर। चलिए टेस्ट। अच्छा पीडीएफ समस्त शो होला। इथे आमको एत सारा किसी मन रखार ना अल्प किसी मन रखार अच्छे। पर्टिकुलर मुझे कहीदे यहाँ कौन तुम इंपोर्टाट साधारणतः आमर जो रोचे कोप 16। कोप 16 पूर्वटा हूँ कौन ना कोप 15। ओके एटा प्रति 2 वर्ष थे प्रति 2 वर्ष एव्री 2 ईयर होता है। तार तो बर्तमान आम जो कोप 16 अच्छी कोप 16 एटा केबे हितला ना 2024 नवेम्बर मास एटा हितला। 2024 नवेम्बर। तार तो कोप 15 टा केबे हितला? तार तो कोप 15 टा तुम होता केबे ना 2022 जेहेतु 24 तो ए जो तुम जो एप्रिल मास जो मैंने मेन एग्जाम दब तुम लंग क्वेश्चन हो पार ग्यारंटी सहित कहूँ बहुत चांस होची। किंतु जो मैंने 2025 जुलाई मास में प्री एग्जाम दब से ए चैप्टर तुम एमसीक्यू हो पार। कहीं एमती किसी जिन रोचे जोटा कि आज एमसीक्यू हिसाब से हो पार आज लंग क्वेश्चन हिसाब से हो पार। तो मन रख यहाँ बहुत इंपोर्टाट टपिक हो आग बुझा जिनसा कौन। अच्छा आमे बायोडायवर्सिटी तीनोटी क्लास करते बायोडायवर्सिटी तीनोटी क्लास करते। प्रथम क्लास में पढ़ी बायोडायवर्सिटी लेवल कौन अच्छी देखिले। तापर देखिले कौन ना तुम सेकेंड क्लास में कौन कले बायोडायवर्सिटी इनसिटू पढ़ा थर्ड क्लास रे कल ना। हाँ हाँ इनसिटू पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन बायोडायवर्सिटी कौटे आसला क्लास रेगुलर कौन ना पॉल्यूशन को पढ़े सारे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। ओके तो ये सब जिन पढ़ी काली आम कौन पढ़ते ना सीबीडी काली पढ़ते सीबीडी अलरेडी तार पीडीएफ मु अपलोड कर सारी अलरेडी तार क्लास अपलोड कर सारी। देखो ताकू नेकरी एक करेंट अफेयर आसे ताकू नेकरी एक करेंट इश्यू आसे जे सीबीडी रे मु तुमको पढ़ाई जे कोप सीओपी कोप सीबीडी रे मु पढ़ाई कौन कोप विषय डिटेल्स कहती
कोप हूँ किए से ना गोटे डिसीजन मेकिंग बॉडी। ओके, तो ता विषय डिटेल्स तुमको मुझे कही जे सीबीटी केबे फॉर्मेशन होला एक्स वाई जेड। जेहेतु आम कोप 16 पढ़ा टिके आमको कहा ऊपर ध्यान देवार अच्छी ना कोप 15 ऊपर टिके ध्यान देवार अच्छी। 15 रे कौन सब डिसीजन नियाइतला कहने ताकू डिपेंड करछ कोप माने सॉरी 15 रे कौन आमे डिसीजन नैतिले ताकू बेस करछि किए से ना कोप 16 बेस करछि। ओके, अच्छा मत कहो कोप 15 टा कोठी हितला कोप 15 टा कोठी हितला। अच्छा मन रख आमे जो कोप 16 थिला आमे हाँ आमे आकु कौन कहिथो जानछ एटा एक्चुअली चाइना रे हबार कथा। जेहेतु चाइना रे माने तार रेस्ट्रिक्शन थिला कोविड सकासे एटा चाइना रे नय दुईट जगह एटा कराइथला मीटिंग। गोटे होची कुनमिंग एंड मोन्टे किसे मोन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क बोली आमे तो कहितो जोटा कि कनाडा रे जोटा कि अछि ताको शॉर्टकट रे आमे कहितो किसे ना KMGBM। अच्छा मन रख आटा जो ओडिया रे टिके स्पेलिंग भूल अछि आर होछि कोन लिखा है सेटा कुन मिंग कुनमिंग। ओके, मॉन्ट्रियल ग्लोबल जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एक्चुअली इतरे कौन डिसीजन है जे आर मुख्य आर ये हूँ गोटे नॉन हूँ बाइंडिंग फ्रेमवर्क जार मुख्य आम टार्गेट नेले आम जो बायोडाइवर्सिटी जो लॉस होचे आम आपको रिड्यूस करवा जो कमेबा केते सुधा आम कमेबा ना 2030 सुधा आम जो बायोडाइवर्सिटी जो रिड्यूस मान जो लॉस को कमेबा केते सुधा ना 2030 सुधा आम करवा। इथिरे चारोटी स्टेप गोल निया था चारोटी मुख्य गोल निया था अप टू अचीवमेंट बाय जो 2025 हमें तुम जो KMGBF को केएम जो अच्छी आपको मुझे बेसी पढ़ौनी जस्ट खाली हल्के कहूँ कारण तुमको जिते कोप 16 लिखो जस्ट टे मिसेक पड़े कौन कौन थिला इथिरे आम मुख्य चारोटी गोल उपर ध्यान देते जोटा कि आम केते सुधा फिलअप करने टार्गेट थिला 2050 सुधा आम फिलअप करने टार्गेट थिला। आर मुख्य लक्ष्य हूँ ओडिया में कही दूसरी 2030 सुधा जैव विविधता क्षति को रोकवा एवं प्रत्यावर्तन करवा जोटा कि तुम कहली जोटा कि बायोडाइवर्सिटी जो लॉस होची आगे ताको रोकवा कौ बसिया पर्यंत 2030 मसीहा पर्यंत टार्गेट थिला। 2025 सुधा हासिल करने को चारोटी लक्ष्य स्थिर कराइला मुख्य आर लक्ष्य आउ कौन कराला ना प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर इथे आम क्या ध्यान देले प्रोटेक्शन और रिस्टोर उपर ध्यान देले। सस्टेनेबिलिटी यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी अर्थ आम सेकेंडली आप कहा फोकस कले ना सस्टेनेबिलिटी यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी फोकस कले। ओके, बुझा पड़ा समस्त ए पर्यंत को जिनस आम ए फोकस करते KMGBF रे को जिनस फोकस कले। प्रथम कथा हूँ आम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय द ईयर ऑफ 2023 सॉरी 2030 पर्यंत आम लॉस को माने कमेगा। सेकेंड हूँ फोर गोल विल बी अचीव विद इन द ईयर ऑफ 2050 2050 मसीहा पर्यंत ये गोल को आम अचीव करवा। आउ कौन आसला प्रोटेक्शन एंड रिस्टोर कहा करी आम जो बायोडाइवर्सिटी अच्छी जो इकोसिस्टम अच्छी जो स्पेसीज मान अच्छा एमान को प्रोटेक्ट करवा रिस्टोर करवा एमान ऊपर काम करवा। आ सस्टेनेबिलिटी यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी माने कौन बहुत समय पर्यंत केमी बायोडाइवर्सिटी को रखिपर से प्रति आम फोकस करवा। अच्छा सबुठ मुख्य पॉइंट होची इथिरे आमे टार्गेट रखी 23टा टार्गेट जोटा कि तुमको मु पढ़ेबी कौन ना 16 रे जोटा कि ए पॉइंट विषय कह जाए 23टा टार्गेट आम रखा जाइला जोटा कि केबे सुधा आम कंप्लीट करने ना 2030 सुधा आम कंप्लीट करने आउ गोटे भेरी इनिशिएटिव स्टेप जाइला 30/30 टार्गेट 30/30 टार्गेट तार तो 30% कंजर्वेशन ऑफ लैंड आउ आयरलैंड एंड आपको सब 30% रिस्टोर बा कंजर्वेशन करवा अप टू केते मसीहा पर्यंत 2030 मसीहा पर्यंत ए सब स्टेप ताको हमें कहला 30/30 टार्गेट आउ गोटे हूँ कौन 23टा टार्गेट थिला 2030 सुधा आम फिलअप करवा आउ गोटे कौन थिला 30/30 टार्गेट बुझा पड़ा समस्त जे एक्चुअली आम इथिरे कहा कहा ऊपर आम फोकस करथिले। आउ गोटे हूँ DSI डिजिटल सिक्वेन्स इनफॉरमेशन ऊपर आम ध्यान दौले बुझा पड़गला जे कोप 15 रे आम कौन सब टार्गेट रखी ना आउ थे कहबी पुओ मैंने मो कहवा कथा बुझा दरकार जो बुझीगले तुम मन को लिखिद किसी मत सहित पार्टिसिपेट करो जे कोप 15 आम कौन कौन थिला प्रथम पॉइंट कौन थिला
मुख्य बायोडाइवर्सिटी लॉस को रिड्यूस करवा 2030 सुधा चारोटी गोल रखा 2050 सुधा आउ आसला कौन ना आमे टार्गेट रखले 23टा स्टेप टार्गेट रखा 2030 सुधा आमे 23टा टार्गेट को फिलअप करने आउ आमे गोटे टार्गेट रखले 30/30 टार्गेट जो 30% कंजर्वेशन ऑफ लैंड आउ होचे आइलैंड वाटर एंड 30% रिजर्व माने ताकू इकोसिस्टम को हमें माने कौन करवा कंजर्व करवा ए सब जिंस 30% लेका कमेवा पे हमें टार्गेट नेथिले जोड़ा मुख्य भूमिका था आउ हला लास्ट पॉइंट होची कोन डीएसआई डिजिटल सीक्वेंस इनफॉरमेशन ओके तो या ऊपर फोकस कराइला एबे पळे आसे पॉइंट देखो कोप 16 रो जो सब पॉइंट मु रेड कलर करिछि बस सेति की पॉइंट को मन रखियो सेति की पॉइंट को आगो लिखियो बाकी जिछ पछ लिखले चलिबो अच्छा आरे बहुत सारा इनिशिएटिव पॉइंट पर हम टारगेट नहीं देखो फाइनेंशियल मेकानिज्म फॉर डीएसआई फाइनेंशियल मेकानिज्म फॉर डीएसआई माइंड रे क्वेश्चन आछतो सर डीएसआई मेकानिज्म कहले कोन छ टिके मु जाउछि 2016 को 16 सॉरी 15 को 15 को गले तुम बुझी पारिबो जे ए पॉइंट र मीनिंग कोन लास्ट पॉइंट कोन था देखो लास्ट पॉइंट समस्त पढ़ो कोन देखाइ छै benefit sharing for from us digital sequence information तार तो जितेबाला आम कौन डिजिटल सिक्वेन्स इनफॉरमेशन बा डीएसआई पद्धति रे जो फॉरेन कंट्री माने अछंती बहुत सारा प्रॉफिट नउछंती ना नहीं तो ता ऊपर पॉइंट को रखा कौन कहा जाइछि ना फाइनेंशियल मेकानिज्म ऑफ डीएसआई आर मुख्य काम होछि ऑपरेशनल ऑफ कॉल फंड जो फंड आसुची ताको हमें ऑपरेशन करिबा माने कोन माने जोटा कि हमें जो जो इंडिजिनियस पीपुल अछंती ताको पय हमें काम करिबा जोटा कि ला एठी से मु कहला इंडिजिनियस पीपुल एंड लोकल कम्युनिटी पय जो जो पैसा तुमे जो प्रॉफिट पाउछो तार 1% में कोन करिवो ना इंडिजिनियस पीपुल जो अछंती बा लोकल कम्युनिटी अछंती ताको पय तमे काम करिबो बुझा पइला प्रथम स्टेप कोन कहला जो कहा को नेखि डीएसआई को लेकर कौन कहल बुझा पहले समझ ना आउ थे कहबी टिकेटा कंफ्यूजिंग जिनिस तुम टिके कंफ्यूजिंग हिजो ओके अच्छा एबे आसला द्वितीय पॉइंट एबे जिबा द्वितीय पॉइंट रे आउ कोन रखा जे कोप 16 रो द्वितीय पॉइंट रे कोन रखा अच्छा परमानेंट ओके प्लीज सेकेंड ओके मु आउ थे पूछ फास्ट में बुझ जे हमरो डीएसआई कौन डीएसआई रो अर्थ होची डिजिटल सीक्वेंसी इंफॉर्मेशन आर अर्थ होची आ द्वारा हम जो टेक्निक सब यूज करछे गोटे कंट्री बहुत सारा प्रॉफिट पाइबो ताकू नेक रिथि हम गोटे रूल तयारी करले फाइनेंशियल मेकानिज्म ऑफ डीएसआई आर काम होची जो माने तुमरो इंडिजिनियस पीपल रहउछंती लोकल कम्युनिटी होचंती तांको सहित तुम शेयर करबे किछि प्रॉफिट को आर मीनिंग होची शेयर सेकंड पॉइंट होची परमानेंट सब्सिडारी बॉडी परमानेंट सब्सिडारी बॉडी हम तयारी करियो यार अर्थ होची देखो पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिजिनियस पीपल इन ऑल कन्वेंशन प्रोसेस तार तो तुम जो प्रोसेस करूछो बा तुम जो किछि स्टेप नउछो इंडिजिनियस पीपल मानको सिधरे माने ऐड करियो जेटा कि द्वितीय स्टेप होतला तृतीय स्टेप होची कोन ना लॉन्च ऑफ कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड जेतेबेले आमे एठी गोटे टिके पळेबा फास्ट पॉइंट आमे कोन कहथिले प्रथम जो थिला कोप 15 को आमे कोन कहथिले कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी बोली आमे कहथिले तो ता भितरे आमे टार्गेट कोन रखिछे 2030 सुधा सब जिनिस को आमे कमेबा तो ताकू कमे पाई हेले हमको पैसा दरकार ना नहीं हमें खाली मन मन सब जिनिस कर दवा तापर तृतीय पॉइंट तो मु कहला लॉन्च ऑफ कुमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड हम जो कोप 15 जो गोल रखा है ताकू रिड्यूस करिया पे हमें कोन करिया फंडिंग करिया आउ कोन आसिला तापर आसिला होची आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोलॉजिकली एंड बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट मेराइन एरिया तो हमको पर्टिकुलर जो 30/30 टार्गेट रखा है तारी अंडर रे हमें ताको आइडेंटिफाई करिया मेराइन एरिया जोटा कि माने जो एरिया रहूची जोटा कि माने हां जोटा कि कुआड पळौची ना तुमरो माने डिग्रेडेशन आडू पळौची माने लॉस आडू पळौची ता पर हम फोकस करिया एम 3-4 पॉइंट पर मन रखिबो ता पर आसिला भारत रो स्टेप कोन थिला
ଭାରତର ଷ୍ଟେପ୍ ଥିଲା ଏଠି କ'ଣ ନା ଯୋଉ 23ଟା ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ରାଜି ହେଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ଭାରତ 2025ରୁ 30 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ? 21,664 ଅଫ୍ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଫଣ୍ଡିଂ ସେ ଦେବ। ଓକେ, ତ ଏଟା ଥିଲା ତ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ, ଆଉ ଏତେ କିଛି ନାହିଁ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ବ୍ରିଫ୍ ଆଇଡିଆ ଦେଲି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ତୁମେ ତ ଏଥରକୁ ଲେଖିବ, ସବୁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଲେଖିବ। ତୁମେ ଭାବିବନି ଯେ ମୁଁ ସବୁତକ ଲେଖିବି, ସବୁତକ ଲେଖିଲେ ଜାଗା ହବନି। ତ ତୁମକୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ବାଛିବାର ଅଛି, ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଲେଖିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିକୁ ନେଇ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ କରେଣ୍ଟରେ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ହଉଛି କୋପ୍ 60। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଯୋଉ ଯୋଉ ଟପିକ ମୁଁ ସାରିଛି, ମୁଁ ସେ ଟପିକକୁ ବେସ୍ କରି ଆସନ୍ତା କାଲି ଠାରୁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରଟା କୋଉଠି ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିବି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ରାତି 10:30 କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ କରିବା।